السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ نقلی بندوق مقدمہ اصلی، ریئل اسٹیٹ عارف و دیگر پر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج، پولیس تحقیقات میں بندوق نقلی ہونے کا ہوا انکشاف۔ متحدہ ضلع میں ناگا پنچمی کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد، عوام نے کورونا اصول و ضوابط کے ساتھ انجام دی مذہبی رسومات۔ ریاست میں 1 سپٹمبر سے تعلیمی اداروں کی کشادگی کے امکان، محکمہ طب و محکمہ تعلیم کی جانب سے گرین سگنل۔ ریئل اسٹیٹ و تعمیر کے میدان میں TRS دور حکومت میں تلنگانہ کو پہلا مقام حاصل۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ تاجرین کے اجلاس میں شرکت و خطاب۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی ترقی ممکن، نوجوان تعلیم کے میدان میں آگے آئے۔ آرمور میں تعلیم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء میں ریاستی الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی کی جانب سے انعامات کی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسلامی و قمری نئے سال کا پہلا مہینہ محرم کی پہلی جمعہ کے موقع پر اس ماہ مبارک پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی رپورٹ۔ محرم الحرام منسوب اللہ ہے اور یہ مہینوں کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے دامن سے بہت سے اہم واقعات وابستہ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو مکاناً علیہ کی رفعت سے سرفراز کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول و حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکالے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام سے تکالیف اٹھا لی گئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام مغرب بارگاہ رب ودود ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ آرائے سلطنت ہوئے، اور اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی روز دنیا کو وجود بخشا گیا، اسی روز پہلی بار باران رحمت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی، اسی روز اللہ تعالیٰ نے عرش لوح و قلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جامع ہستی پہنچایا۔ یاد رہے کہ جس طرح دنیا کا سنگ بنیاد عاشوراء کے دن رکھا گیا، اسی طرح دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت بھی یوم عاشوراء کو واقع ہوگی۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 افقہ کے ہمراہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو اصحاب فیل نے کعبے پر حملہ کیا تھا۔ نظام آباد سٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے اہم اجلاس کا انعقاد، تمام سیاسی سماجی قائدین کی شرکت و کیا تبادلہ خیال۔ آج شہر نظام آباد پریس کلب پر کل جماعت اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں کانگریس، BJP، MBT، WPI، CPM، CPI و دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کرتے ہوئے شہر کی ترقی و نئے ماسٹر پلان کے مطابق تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ ماسٹر پلان صرف سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے، جس سے کئی علاقے متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر علاقے کا دورہ کرتے ہوئے عوامی اعتراضات کو جانے، اور اس اجلاس میں کانگریس اربن انچارج طاہر بن حمدان، MBT محمد باسط، شیخ حسین، جماعت اسلامی و دیگر موجود تھے۔ ہم سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، کیونکہ جو نظام آباد کا جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی جماعت اپنی منمانی کر کے اس کو چلا نہیں سکتی، کیونکہ یہ نظام آباد سٹی ڈیولپ ہونا ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ کا جو میعاد جو رکھا گیا تھا یہ 75
खोदना रखा गया था। जिस वक्त इसका मैप रखा गया था उस वक्त निजामाबाद की आबादी 3 लाख थी। 74 से आज 2021 में आज आबादी 4.5 लाख से अबव हो गई है। इसकी वजह से आज हमको जो रोड को मास्टर प्लान में लाने का जो मैप रखा गया था वो रोड जिस वक्त वो 60 फीट की रोड थी, आज वो रोड अगर आप देखेंगे, मैं आपको 2-3 रोड की मिसाल दूंगा। जैसे कि निजामाबाद में खिला रोड है, जिस वक्त ये रखा गया था उस वक्त खिला रोड का 100 फीट की जगह हम रोड में नहीं करते हैं तो उस वक्त कोई मसला नहीं था। लेकिन आज मसला ये हो चुका है कि खिला रोड 60 फीट की हो गई। पूरे हर तरफ से घना बन रहे लोग, नाजायज कुछ खतरे भी है, कुछ लोग जो है रियल एस्टेट वाले जो उसको फ्लैटिंग बनाने की बेचती है। ऐसे ही दूसरी एक मिसाल है निजामाबाद में मालाफेरी का मसला तो ये है, जिस वक्त ये मैप बनाया गया था उस वक्त रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा रियल एस्टेट ताजरीन की तकरीब में शिरकत व खिताब। माधापुर हाईटेक के क्रेडाई प्रॉपर्टी शो प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करके दीप रोशन करते हुए प्रॉपर्टी शो वो दीगर स्टॉल्स का इफ्तिताह अमल में लाते हुए प्रॉपर्टी शो में कायम किए गए स्टॉल्स का मुशाहिदा करके कहा कि क्रेडाई प्रॉपर्टी शो में 1500 प्रोजेक्ट और 100 स्टॉल्स में एग्जीबिशन का क़याम अमल में लाते हुए रियल एस्टेट की हकीकी तस्वीर को अवाम के सामने रखने पर मुबारकबाद के हकदार होने का इजहार करते हुए बताया कि हैदराबाद बिल्डर्स रियल एस्टेट की जानिब से अवाम के लिए अहम तरीन प्रोडक्ट दस्तियाब है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR व रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की काविशों के सबब रियासत तेलंगाना तमाम मैदानों में तरक्की की जानिब रवा दवा हो रही है और साबिक़ा हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर मसला हुआ करता था, लेकिन रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद गैर मजाज कब्ज़ात, रॉडी शीटर्स व दीगर मसाइल से निजात हासिल करने का इंकशाफ किया। మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవాళ తెలంగాణ హైదరాబాద్ బిల్డర్లు కావచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు కావచ్చు, ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చే స్థాయికి, ప్రజలకు మంచి ప్రోడక్ట్ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగినందుకు మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. నౌ తెలంగాణ ఈజ్ ద నంబర్ 1 ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. ఇటు బిల్డింగ్ రంగంలో కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో కావచ్చు, ఇవాళ తెలంగాణ స్టేట్ నంబర్ 1గా ఉన్నదంటే నేను నిజంగా కూడా చాలా సంతోషంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. మరి ఇవాళ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తెలంగాణలో కావచ్చు, హైదరాబాద్లో కావచ్చు ఇంత ప్రజ్వలిస్తున్నది అని అంటే, ఇంత గొప్పగా ముందుకు పోతున్నదంటే డెఫినెట్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు తీసుకున్నటువంటి ఎన్నో పాలసీలు ఈ రంగానికి దోహదం చేసినాయి. రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అయితే ఇక ఈ రంగానికి స్కై ఇస్ ద లిమిట్ हैदराबाद। नकली पिस्तौल से फायरिंग लेकिन असली मुकदमा दर्ज। नकली बंदूक अमेज़न से मंगाई गई। पुलिस तहकीकात में हुआ इंकशाफ, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व दीगर के तहत आरिफ व दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज। अवाम में खौफ पैदा करने के लिए इसी तरह के वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नौजवान इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले अफराद से दूरी अख्तियार करें। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया। जिले पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने आज सहाफती इलामिया जारी करते हुए बताया कि नकली पिस्तौल से बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाले आरिफ के साथ तकरीब में शिरकत करने वाले दीगर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन कबल आरिफ नामी एक नौजवान की जन्मदिन तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें फायरिंग की गई। ये वीडियो वायरल होने और रियासती चैनलों पर नशर होने के बाद सारी रियासत में हलचल मच गई। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरिफ एक कार पर सवार होकर जन्मदिन तकरीब में पहुंचा और इसने हवा में फायरिंग की। न्यूज चैनल पर आरिफ नामी रावड़ी शूटर की जन्मदिन तकरीब में फायरिंग और आरिफ पर PD एक्ट दर्ज होने के सिलसिले में खबरें नशर होने के साथ ही सारे महकमे पुलिस में हलचल मच गई और पुलिस ने वीडियो में दिखाई देने वाले तमाम नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इन्हें 6
सिक्स टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने बताया कि आरिफ एक कैदी है, इस पर पीडी एक्ट दर्ज है। 2 माह कबल वो जमानत पर रिहा हुआ है। आरिफ और इसके साथियों की गिरफ्तारी पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वरलू, सर्कल इंस्पेक्टर रवि सिक्स टाउन पहुँच गए और गिरफ्तार किए गए नौजवानों से सख्त पूछताछ की, जिसमें इंकशाफ हुआ कि अमेज़न से नकली पिस्तौल मंगाई गई जिससे फायरिंग की गई है। पुलिस कमिश्नर ने आरिफ और दीगर के खिलाफ केस दर्ज करने के अहकाम जारी किए, जिस पर मुख्तलिफ दिफात के तहत जन्मदिन तकरीब में शामिल नौजवानों पर केस दर्ज किया गया। నిన్న నిజామాబాద్ టౌన్లో సోషల్ మీడియాలో మరియు మీడియా ఛానల్లో ఒక వీడియో వైరల్ ఉంది. ఆ వైరల్ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఒక ఫైర్ ఆర్మ్ తీసుకొని కారు మీద కూర్చొని ఎయిర్లో ఫైరింగ్ చేస్తున్నాడు అట్లా కనిపిస్తుంది. పక్కనే చాలామంది ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ సమ్ పార్టీ మూడ్. ఈ సందర్భంగా ఇమీడియట్లీ నిజామాబాద్ సిక్స్ టౌన్ పోలీస్ ఎస్హెచ్ఓ మరియు ఇన్స్పెక్టర్ దర్యాప్తు చేశారు. ఆ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తి యాజ్ సయ్యద్ ఆరిఫ్, నేటివ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ టౌన్, అట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ దర్యాప్తులో ఒక ఇమిటేషన్ ఫైర్ ఆర్మ్ పిస్టల్ కూడా, ఒక రివాల్వర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్చువల్ ఫైర్ ఆర్మ్, ఇది ఒక ఇమిటేషన్ ఫైర్ ఆర్మ్, అంటే నకిలీ రివాల్వర్ ఉన్నది. ఇది దర్యాప్తులో ఆన్లైన్ రీటైల్ అమెజాన్ నుంచి వాళ్ళు ఆర్డర్ చేస్తున్నారో తెలిసింది. కానీ ఈ సందర్భంగా 2 మెంబర్స్ కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ మెయిన్ ఒఫెండర్ దీంట్లో ఆర్ఎఫ్ యాక్చువల్లీ రౌడీ షీటర్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్. గతంలో చాలా సీరియస్ కేసెస్ కూడా ఇతని మీద ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్లో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద కూడా డిటైన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు షో హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఫర్ థ్రెటనింగ్ ద సొసైటీ. సో ఈ వీడియో వెనుక ఉద్దేశం అంటే ఈ తుపాకీ చూపించి ఫైరింగ్ ఎయిర్లో ఫైర్ చూపించి కొంచెం పబ్లిక్లో ఒక భయం పెట్టి ఒక క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్, ఒక ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం నా ఉద్దేశం ఉన్నది. సో దిట్ ఈస్ అ క్రిమినల్ మైండ్ సెట్ బిహైండ్ దిస్ యాక్షన్. సో ఈ సందర్భంగా ఒక ఆర్మ్స్ యాక్ట్, తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ ఫైర్ ఆర్మ్ అండ్ ఐపీసీ రెలవెంట్ సెక్షన్, తర్వాత డిజాస్టర్ అండ్ కింద ఒక ఎఫ్ఐఆర్ సిక్స్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో బుక్ చేయడం జరిగింది. 2 మెంబర్స్ ఆర్ టేకన్ ఇన్ టు కస్టడీ. So particularly this person is having a criminal history. So I congratulate Sixth Town Police Station and ACP Nizamabad for immediately taking action in this case. Adhavidhanga, any person making such videos threatening the society will not be tolerated. Etti paristhitilo manam Nizamabadlo ilanti rowdy sheeter gaani evaraina ilanti tupaki teeskoni gaani fake weapon teeskoni prajalki bhayam pettadamante will not be tolerated at all in Nizamabad. Any person doing such activity will be booked into cases and strict legal action will be taken. అదేవిధంగా నేను యూత్కి కూడా ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. దయచేసి మీరు ఇలాంటి పర్సన్స్తోనే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. డూ నాట్ గెట్ ఇన్ టు సచ్ యాక్టివిటీస్. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं करने से आप पे इट इज़ इलीगल टू डू सच थिंग्स एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन बाय द लॉ. थैंक यू. निजामाबाद में खातून की अस्मत रेजी और कत्ल का सनसनीखेज वाकया। निजामाबाद में खातून की अस्मत रेजी का सनसनीखेज वाकया मंजर-ए-आम पर आया। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाली 40 साल खातून 27 सितंबर को निजामाबाद के बस स्टैंड पर पहुंची, जहां पर ऑटो ड्राइवर बालाजी इसके साथी आकाश ने खातून को चिकनी चुपड़ी बातों में फांस कर गुंडाराम पहुंचे, जहां पर इन दोनों ने खातून की अस्मत रेजी की और इसके पास मौजूद सोना चांदी के जेवरात छीनकर इसका कत्ल कर डाला। खातून की नाश को झाड़ियों में फेंक दिया। मकतूल खातून के रिश्तेदारों से गुमशुदगी की शिकायत हासिल होने पर सेलफोन सिग्नल की बुनियाद पर नाश का पता चलाया गया। खातून की नाश बरामद होने के बाद मजीद तहकीकात करते हुए कातिलों की शिनाख्त की गई, जो हैदराबाद पाए गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। కేస్ డిటెక్షన్ సంబంధించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఆఫ్ ఎ మ్యారీడ్ ఉమెన్. ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 27th ఎర్లీ అవర్స్, అంటే 12 తర్వాత, నైట్ 12 తర్వాత ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. దీంట్లో చనిపోయిన వ్యక్తి షీ ఈజ్ ఎ మ్యారీడ్ ఉమెన్. ఆమె సారంగపూర్ నేటివ్, షీఈ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ సారంగపూర్. అయితే ఆమె అనారోగ్య కారణంగా జీజీహెచ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చి, ఆ రోజు బెడ్ అవైలబిలిటీ లేదు, పొద్దున్నే వస్తే బెడ్ అవైలబిలిటీ ఇస్తామని చెప్తే ఆమె సారంగపూర్ వెళ్ళే క్రమంలో ఆటో ఎక్కుతుంది.
ఆటో ఎక్కిన తర్వాత ఈ అఫెన్స్ జరుగుతుంది. సో ఇనిషియల్గా ఈమె మిస్సింగ్ అయింది. మిస్సింగ్ కేసు ఒకటి రిజిస్టర్ చేశారు 1 పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఆన్ 1 ఆగస్ట్. తర్వాత 8వ తారీఖున ఒక వ్యక్తి మృతదేహం, ఒక మహిళ మృతదేహము గుండారం చెరువు దగ్గర రూరల్ పిఎస్ లిమిట్స్లో లభ్యమైంది. దాన్ని వెరిఫై చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ మిస్సింగ్ పర్సన్నే డెడ్ బాడీ అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ జరిగింది. సో దీంట్లో ఇనీషియల్గా ఏమీ క్లూస్ లేవు. ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకొని డబ్బుల కోసము ఆటో నడుపుతున్న క్రమంలో ఈ డిసీజ్ చనిపోయిన వ్యక్తి ఆటో ఎక్కడం జరిగింది. ఆటో ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళు దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఆమెని మాయమాటలు చెప్పి, అప్పటికే ఆమె కొంచెం వీక్ ఉంది, షీఈస్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇల్ హెల్త్, దానివల్ల వీక్గా ఉండటము, తర్వాత వాళ్ళని ఆమె నమ్మింది. సో దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని వీళ్ళు ఈ గుండారం చెరువు దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆమెపై అత్యాచారం చేసే క్రమంలో ఆమె గొంతు పట్టుకోవడము, తర్వాత ముక్కు మీద చేయి పెట్టి ఆదరటము, ఈ క్రమంలో ఆమె చనిపోవడం జరిగింది. సో చనిపోయిన ఆమెని అక్కడ బుషెస్లోకి డ్రాగ్ చేసేసి అక్కడ వదిలేసి వీళ్ళు పరారైపోతున్నారు. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కూడా ప్రాపర్గా జరిగింది. చాలా ఎక్సలెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది. అన్ని రకాల యాంగిల్స్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాము. 0 ఎవిడెన్స్ నుండి 100% ఎవిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ డిటెక్షన్. బట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్. अल्टीमेटली खुद रोजगार हासिल करने के लिए आगे आने वाले नौजवानों को भरपूर मदद फ्राहम की जाए। धरपली ZPTC बाजेडी जगन। निचपली मंडल के सांपली तांडे के हाथे में वाक़े मौलाई तांडे से वाबस्ता 3 दोस्तों की जानिब से जमा करदा 35 लाख रुपए से तामीर करदा पोल्ट्री फार्म को रूरल रुकन असम्बली के फर्जंद धरपली ZPTC बाजेडी जगन ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर बाजेडी जगन ने कहा कि नौजवान एक दूसरे पर मुनहसिर होने के बजाय खुद रोजगार हासिल करने के लिए मेहनत करने का इजहार करते हुए नौजवानों की जानिब से तामीर करदा पोल्ट्री फार्म से कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल होने का इंकशाफ किया। తాండా పరిధిలో సాంపల్లి గ్రామ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మేలయ తాండాకి సంబంధించినటువంటి యువకులు రాజేష్, వినోద్, రాజు, ఈ ముగ్గురు యువకులు కలిసి 35 లక్షలు వెచ్చించి ఇక్కడ ఒక 15,000 కెపాసిటీ గల పోల్ట్రీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసుకోవడము చాలా సంతోషం। कोरोना के पहले डोज का दोबारा आगाज, अवाम इस्तेफादा करे। जिले निजामाबाद में कोरोना के पहले डोज का दोबारा आगाज किया गया है। कुछ दिन कबल कोरोना टीका अंदाजी को किल्लत के बायस रोक दिया गया था। महकमे सेहत आमे के अहदेदारों ने बताया कि जिले में अभी तक 1892 अफराद को कोरोना का पहला डोज दिया गया है। कुछ दिन तातुल के बाद जिले के 41 सेंटर्स पर दोबारा कोरोना टीका अंदाजी का आगाज किया गया है। कल पहले दिन 461 अफराद को पहला डोज दिया गया है। ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमे सेहत आमे के अहदेदारों के मुताबिक जिले में अभी तक 1391 अफराद ने कोरोना का दूसरा डोज लिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका अंदाजी से अवाम इस्तेफादा करें। एरगटला ग्राम पंचायत दफ्तर के हाथे में मुकामी सरपंच जी लावनिया गंगाधर की सदारत में तरक्याती कामों के मुतालिक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। एरगटला ग्राम पंचायत दफ्तर के हाथे में मुकामी सरपंच लावनिया गंगाधर की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौज़े के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZPTC अब्बना राजेश्वर, MPTC डॉक्टर मधु ने शिरकत की। इस मौके पर नायब सरपंच सुन्नपु गंगाना व दीगर 2 वार्ड मेंबरान, आंगनवाड़ी कारकुनान और आशा वर्कर्स मौजूद थे। इस मुनक़िदा इजलास में दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इन तमाम तरक्याती कामों को रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इंकशाफ किया। रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी का इम्कान। 15 सितंबर से इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहान की तैयारी। सरकारी तालीम पर अवामी एतमाद में इजाफा। वज़ीर तालीम
रियासत में कोरोना के केसों में दिन ब दिन कमी को देखते हुए महकमे तालीम की जानिब से 1 सितंबर से मरहलेवारी सतह पर तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहले मरहले में 8वीं जमात से पोस्ट ग्रेजुएट PG तक बाकायदा क्लासेस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। महकमे तालीम की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तालीमी इदारों को खोलने और चंद रियासतों में तालीमी इदारों की कुशादगी पर गौर करने के मसले का जायजा लिया जा रहा है। इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिलों की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक तौसी करके अहकामात जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 15 सितंबर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात के इनेकाद की तैयारियां की जा रही हैं। जराये से पता चला है कि आइंदा 2 या 3 दिन में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। रियासत में कोरोना बहरान के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तुलबा को बगैर इम्तिहानात के सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। अब इन तुलबा के लिए फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तिहानात को मनसूख करके तुलबा को फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर सेकेंड ईयर में मार्क्स दिए गए थे। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने सरकारी स्कूल व कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर दाखिले होने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत में तालीम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है, जिससे तुलबा और इनके वालिदैन का सरकारी तालीम पर एतमाद बढ़ गया है। इंटरमीडिएट में दाखिलों में जबरदस्त इजाफे का हवाला देते हुए सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल 52,000 तुलबा ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला लिया था, जिनकी तादाद जारिया साल बढ़कर 1.9 लाख तक पहुँच गई है। हुकूमत की जानिब से इंटर की तालीम में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाए जा रहे हैं। हर 5 साल में एक मरतबा सब्जेक्ट में तब्दीली लाई जा रही है। रियासत में तमाम तुलबा को मुफ्त निसाबी कुतुब तकसीम किए जा रहे हैं, जिस पर सालाना 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लॉ सेट का 23 और 24 अगस्त को दाखिला इम्तिहान। लॉ सेट दाखिला इम्तिहान का जारिया माह 23 और 24 अगस्त को इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लॉ सेट कन्वीनर प्रोफेसर GB रेड्डी ने बताया कि लॉ सेट मज़कूरा तारीख में 47 मराकिज़ पर 2 सेशनों में मुनक़िद किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 साला कोर्सेज के लिए 23 अगस्त 2 सेशन में इम्तिहान मुनक़िद होगा, जबकि 5 साला कोर्स का इम्तिहान PG लॉ सेट 24 अगस्त के दिन मुनक़िद किया जाएगा। कन्वीनर ने मजीद बताया कि 3 साला लॉ कोर्स के लिए 28,904 उम्मीदवार और 5 साला लॉ कोर्स के लिए 7,676 उम्मीदवारों और PG लॉ सेट 8,286 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। उम्मीदवारों के लिए इस माह की 12 तारीख से हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत दस्तयाब है। गल्फ में काम करने वाले तेलंगाना के लोग वापसी के लिए फ्लाइट टिकट्स में कमी के मुंतज़िर। UAE की जानिब से हिंदुस्तान से सफर करने वाले मुसाफिरीन पर आयद इम्तिना को बर्खास्त करने के लिए UAE की जानिब से हिंदुस्तान से सफर करने वाले मुसाफिरीन पर आयद इम्तिना को बर्खास्त करने के बाद हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स मामूल की फिजाई किराए से दुगना किराया चार्ज कर रहे हैं। इंडिगो, एयर अरबिया, एयर इंडिया, इनमें ज्यादातर नॉन स्टॉप फ्लाइट्स UAE में मुख्तलिफ मुकामात के लिए 20,000 रुपए इकानमी और 26,000 रुपए के दरमियान की कीमत के टिकट्स की पेशकश कर रहे हैं। इसकी वजह गल्फ में काम करने वाले तेलंगाना के कई अफराद ने इनके टिकट्स बुक करवाने के लिए एक और हफ्ता इंतजार करने का फैसला किया है। किराए की कीमतों में एक हफ्ते में हो सकता है कमी होगी। एमिरेट्स की जानिब से एक तरफा टिकट के लिए 35,450 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि दस्तार की जानिब से तकरीबन 34,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। अबैद कुरैशी CEO लिंक हाईलाइट ने कहा कि हमारे यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों में किराए को लेकर कोई मसाइल नहीं है, क्योंकि वो जल्द से जल्द UAE पहुँचना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके वहाँ रेगुलर जॉब से UAE ने अभी विजिट वीजे जारी करना शुरू नहीं किया है। इन्होंने जारी किया जाना है। बाज लोगों ने जिन्होंने इस साल के अवाइल में इनके आबाई मुकामात को वापस हुए हैं और उम्मीद कर रहे थे कि वो इनकी बाकी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारेंगे, इनके जहन तब्दील किए हैं और अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए चाहते हैं कि क्योंकि अखराजात में इजाफा हो गया है और कीमतें बढ़ गई हैं।
एक साल कबल वापस होने वाले करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और दूसरे मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की तवील कतारें देख सकते हैं। इनमें ज्यादातर लोग दुबई या शारजा वापस होने की ख्वाहिशमंद होते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ रहकर अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकता हूँ। हुजूम कम होते ही 1 या 2 माह में गल्फ वापस होकर मुझे जो भी जॉब मिले करूँगा। तेलंगाना हुकूमत गोला कुरमा तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को तमाम किस्म की सहूलतें पहुँचाने का ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इंकशाफ। माकलूर मंडल चिकली देहात में बकरे व मेंढे को कचवा मार अद्वियात की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की और इनके साथ MPP मास्टर प्रभाकर, मुकामी सरपंच प्रमीला, MPTC सुजाता, वेटरनरी डिपार्टमेंट से वाबस्ता ओहदेदार डॉक्टर भरत, डॉक्टर अहमद बसवारेड्डी, गोला कुरमा संगम के कायदीन अशोक, सतीश, KCR सेवा दल जिले सदर रमन राव, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मानकेश्वर राव, अंजया, नीलम रेड्डी, मनोहर राव और नागराजू ने शिरकत। बातजा ZP चेयरमैन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गोला कुरमा तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को तमाम किस्म की सहूलतें पहुँचाते हुए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने का इंकशाफ किया। మన మండల్లో 563 యూనిట్ అంటే మీకు తెలుసు ఇక 20 గొర్రెలు ఒక పొట్టేలు, దాని కాస్ట్ 1,75,000. మరి 1,75,000 మనం కట్టేది ఎంత? 25%. మిగతాది 70% ఈ ప్రభుత్వం మనకు ఉచితంగా సబ్సిడీ ఇస్తున్నది. మరి చూడండి, మనకు పేమెంట్ లేదు, లోను కాదు. కాబట్టి మనం ఇది చాలా సంతోషంగా మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు, ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. మీరు పెంచాలి. शहर के हैदराबाद रोड पर नेशनल हेड जंक्शन हेड ऑफ द डीलर डेवलपमेंट मुरलीधर राव ने इस साल की साई मोटर्स में टाटा हिचकी डीलर शोरूम का इफ्तिताह अमल में लाया। शहर के हैदराबाद रोड पर नेशनल हेड जंक्शन हेड ऑफ द डीलर डेवलपमेंट मुरलीधर राव ने इस साल की साई मोटर्स में टाटा हिटाची डीलर शोरूम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बैक होल्डर से वाबस्ता नई गाड़ी शेनराय प्राइम को सार्फिन के इस्तेमाल के लिए दस्तियाब रखने का इजहार करते हुए कहा कि 1 घंटे के लिए 3.5 लीटर डीजल ही खर्च होता है और HP 74 पर मबनी गाड़ी को मार्केट में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में शोरूम के मालिकीन सुदर्शन रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, एरिया मैनेजर सतीश, शोरूम मैनेजर तिरुपति, सेल्स ऑफिसर भास्कर राजू व दीगर ने शिरकत की। Vertical head for this product Shinrai. Shinrai is a product which is being manufactured by Tata Hitachi. हम लोग Tata Hitachi में जापानीज कंपनी Hitachi का साथ टेक्नोलॉजी लेके ये मशीन बना रहा हूँ। ये मशीन को बहुत ज़्यादा काम रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर वर्क, मुत्तहदा जिलों में नागुला पंचमी का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। मुत्तहदा जिलों में हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की जानिब से नागुला पंचमी त्यौहार को जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए सुबह के अव्वलीन सातों में गाय के दूध को मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़े सांप के बिल पर दूध डालते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मुरादें पूरी कर ली। खलीजी ममालिक से लाए जाने वाले सिगरेट का गैर कानूनी कारोबार जिले निजामाबाद में उरूज पर। जिले निजामाबाद में खलीजी ममालिक के सिगरेट से वाबस्ता गैर कानूनी कारोबार जोरों शोरों से जारी है, जिससे इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना से पेरिस, एसिलेट, डियारम ब्लॉक, गोडांगरम वो दीगर नामों से मुतालिक पैकेट गैर कानूनी तरीके से छोटे शॉप से लेकर होलसेल शॉप तक मुंतकिल किया जा रहा है और सिगरेट कम कीमत पर दस्तियाब होने से नौजवान इस सिगरेट को ज्यादा खरीद रहे हैं। इसी तरह से इस सिगरेट के पैकेट पर सेहत से मुतालिक वार्निंग व एक्सपायरी तारीख तक तबात नहीं की गई है और इसमें तंबाकू से ज्यादा ड्रग्स को शामिल करने के मुतालिक इत्तलात हासिल हुई है। టొబాకో కూడా బ్యాన్డ్ అన్ని టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక సిగరెట్స్ తప్ప కావచ్చు, చూయింగ్ చేసే టొబాకో డైరెక్ట్ టొబాకో అన్ని కూడా బ్యాన్డ్ ఐటమ్. కొన్ని ఇండైరెక్ట్ కన్జ్యూమింగ్ అంటే పొగ తీసుకోవడం అంటే లైక్ బీడీ, సిగరెట్ కొన్నిటికి కొంత పర్మిషన్తో అనుమతులు ఉన్నాయి. మీరు చెప్పినట్టు ఫారెన్ సిగరెట్స్ వీళ్ళ నికోటిన్ శాతం ఎక్కువ ఉంది, దీని మీద
కొన్ని నార్కోటిక్స్ కూడా కొన్ని ఇలా కలిపి చేస్తున్నారు. అలాంటి నార్కోటిక్స్ సంబంధించిన నికోటిన్, నార్కోటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మత్తు కలిగించే ఇవి. శీతల కంట్రీస్లలో జనరల్గా ఈ నికోటిన్, తంబాకు ఏదైతే ఉంటుందో తంబాకులో నికోటిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ నికోటిన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనం మామూలు మన సిగరెట్ కంటే ఎక్కువ నిష వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, మనిషికి మత్తు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి నిష ఎక్కువ, మత్తు ఎక్కువ కలిగించే సిగరెట్స్ నిజామాబాద్లో అమ్ముతున్నట్టు కానీ గతంలో చేసిన కేసులన్నీ కూడా మేము రివ్యూ చేస్తున్నాం. एमएलए जी विठल रेड्डी का मुस्तहसन अमल, जख्मी नौजवान की मदद। भैंसा शहर की खान ऑटो नगर की सड़क पर एक जख्मी नौजवान पड़ा हुआ देखकर एमएलए जी विठल रेड्डी ने अपनी गाड़ी रोककर इस जख्मी नौजवान की मदद की और इसे इलाज के लिए बजरिए ऑटो दवाखाने मुंतकिल किया, जिस पर एमएलए के इस हुस्न सुलूक की बातें कल शाम से भैंसा शहर में गश्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी ने एआईसीसी सदर सोनिया गांधी के अहकामात के मुताबिक मीडिया इजलास मुनाकिद करके 15 अगस्त के दिन शहर में किए जाने वाले तकरीबात का किया ऐलान। जिले निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी ने अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु के हमरा मीडिया के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि एआईसीसी सदर सोनिया गांधी के अहकामात के मुताबिक अगस्त 15 तारीख को 75वीं जश्न आज़ादी के पेश नज़र सुबह के अव्वलीन सातों यानी 7 बजे गांधी चौक के पास कौमी झंडे की परचम कुशाई अंजाम देकर वहां से लॉन्ग मार्च शुरू करके कांग्रेस भवन तक मुनक़िद होने का इंकशाफ किया। हिंदुस्तान में एक मौका ऐसा आया है, ये जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी अवाम के साथ रहकर अवाम के तकालीफ को दूर करने के लिए सोनिया गांधी जो आदेश दिए उस आदेश में हम सब मिलकर काम करेंगे। 15 अगस्त के दिन जो सदर साहब अभी आपसे मुखातिब हुए, जो बोले, उसका अमल करने के लिए हम पूरी हमारी सबके तरफ से कोशिश करेंगे इन दो अल्फाजों के साथ। స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో 15వ తేదీ స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజున 3 కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించ తలపెట్టింది. అందులో ముఖ్యంగా 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో అసూలు బాసిన కుటుంబ సభ్యులను కానీ, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన తెలంగాణ విమోచనలో పోరాటం చేసిన వాళ్ళని కానీ, అదేవిధంగా భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్రం రాకముందు కూడా కొన్ని యుద్ధాలలో అసూలు బాసిన కుటుంబ సభ్యులను కానీ వారిని పిలిచి 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఘనంగా సన్మానించాలంటనేది ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశం. ఆ ఆదేశాన్ని తీసుకొని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల్ని इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नकली बंदूक मुकदमा असली, रियल एस्टेट आरिफ और दीगर पर मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज, पुलिस तहकीकात में बंदूक नकली होने का हुआ इंकशाफ। मुतहदा जिले में नागा पंचमी का जोश खरोश के साथ इनेकात, अवाम ने कोरोना उसूल और ज़ाबित के साथ अंजाम दी मजहबी रसूमात। रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादी के इम्कान, महकमे तीव्र महकमे तालीम की जानिब से ग्रीन सिग्नल।
रियल एस्टेट व तामीर के मैदान में टीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का हैदराबाद में रियल एस्टेट ताजिन के इजलास में शिरकत व खिताब। आला तालीम से ही तरक्की मुमकिन, नौजवान तालीम के मैदान में आगे आए। आरमूर में तालीम के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल करने वाले तलबा में रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी की जानिब से इनामात की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।